السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو خیر ایسا ہوا تھا کہ کل میری بیٹری تھوڑی ڈیڈ تھی، اس لیے میں نے ناول بیچ میں چھوڑ دیا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے تھا قدر غصے سے کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ اجلت میں فخر سلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی؟ نہ جان نہ پہچان، خواہ کسی اجنبی، وہ بھی گورے کے ساتھ یوں سرے راہ گپے لگانے کا مقصد؟ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ نشا پر برس پڑی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر وہ ترک سیاہ سفید چکور بلاکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا۔ دفتن اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی میرا مسلمان بھائی ہے، ایک برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے۔ میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میزبانی نبھاؤں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں مسلمان لڑکی۔ گاڑی واپس اسلام آباد کے راستے پر ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے۔ کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں؟ اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا، اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے، نشا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی، 8 دن ندا آپا کے ساتھ یا 8 دن اس ترک سیاہ کے ساتھ۔ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کیونکہ ندا آپی کے ساتھ 8 دن گزارنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نشا کو ڈراپ کر کے گھر آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے کریڈل پر دھرا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، تم اپنے کزن کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ناگوار سا باز برس کرنے کا لہجہ تھا سیف کا۔ کالام، اور بھی لوگ جا رہے ہیں؟ ماموں نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں دور افتادہ علاقوں میں باپ بھائی کے بغیر سڑکیں ڈھانپتی پھریں گی؟ وہ اس سے واضح طور پر ناراض تھا۔ پاپا نے مجھے اجازت دے دی ہے سیف، کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس خیال نے اسے تھکا دیا۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم یوں نہیں جاؤ گی، تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ تحکم برا انداز، وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہم اسکول میں بھی تو ٹورز کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایک قابل اعتماد ٹریول ایجنسی کے ساتھ۔ یہ یوکے نہیں ہے پریشے، اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ بس تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ اچھا، پریشے نے فون رکھ دیا۔ چند لمحے آزادگی سے فون کو دیکھتی رہی، پھر نشا کا نمبر ملایا۔ نشا، میری آواز سنے بغیر چین نہیں آ رہا جو گھر پہنچتے ہی فون کھڑکا رہی ہو؟ نشا، میں کالام نہ جاؤں تو؟ نشا ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ پری، وہ کچھ دیر بعد بولی، وہ ایک اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی۔ بلیو می پری۔ نہیں نشا، سیف نے منع کیا۔ واٹ دی ہیل، اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے والا؟ میں تو ابھی تک تمہاری ممی کو قبول نہیں کری، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں، لیکن تم نے شاید شادی سے پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، فائن، میں یوں ہی تمہارے لیے ہلکان ہوتی ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم، جہنم میں جائے سیف، جہنم میں جائے فخر سلان۔ ایک پسماندہ مسکراہٹ پریشے کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں نے اس کی غلامی قبول نہیں کی، اور سنو، میں نے پروگرام بھی کینسل نہیں کیا، لیکن اگر تم نے میرے نام کے ساتھ فخر سلان کا نام پھر لیا تو میں پروگرام کینسل کر ہی دوں گی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سیف کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کلام سے واپسی کے بعد اس کی شادی ہو ہی جانی تھی، دل نہ تب مر ہی جانا تھا، اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کی پرواہ نہ رہے، نہ دکھ کی نہ خوشی کی، شاید تب وہ بے حس ہو جائے۔ مگر اسے بے حسی کے دور کا آغاز سے قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تیسری چوٹی، اتوار 24 جولائی 2005۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر وہ گھر کے گیٹ سے باہر ٹور کمپنی کی بس میں آ گئی۔ ان کا گائیڈ کم ڈرائیور ظفر اس کا سامان لوڈ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ بس میں اسے چار انجان چہرے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پر کھڑکی کی طرف شیشے پر بیٹھ گئی۔ نشا یا وہ ترک سیاہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کھلے شیشے سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ اس نے شیشہ بند کر دیا اور لیئرز میں کٹے سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھا۔ دفتن اسے دوسرے مسافروں کا خیال آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کے بائیں طرف نشستوں کی قطار میں اس کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ عمر بمشکل 20-21 برس ہوگی۔ قدوں سے اوپر آتے کھلے بال جو ماتھے پر پینٹس کی صورت میں کٹے تھے، اور گوری رنگت۔ وہ ماہیت سے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کرتا پہن رکھا تھا اور پاؤں میں سینڈل تھے۔ دوسرے مسافروں میں 50-55 سالہ ایک انکل تھے، غالباً کوئی ریٹائر افسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصے وجیح تھے اور سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدرے کرخت اور نک چڑی سی لگتی، البتہ میاں بیبا سا تھا۔ پریشے کو قیافہ شناسائی سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے، کوئی وقت ہے جانے کا، مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا اس کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس، جو نشا کو پک کر رہی تھی پھر چل پڑی۔ سو جاؤ، لمبا سفر ہے، اس نے نشا کی خوابیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ ظفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے سے اٹھایا تھا۔ وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آئے، بجائے ریٹائر صاحب کے ساتھ والی
खाली निजिस पर बैठ गया। उसे तो गर्दन को जंबिश देकर उन दोनों की तरफ देखा तक न था। चूंकि वो उनसे काफी आगे बैठा हुआ था और वो भी बाएं कतार में, सो वो उसका महज दायां कंधा, बाजू और सर ही पीछे से देख सकती थी। लाइट ब्राउन शर्ट, सफेद पैंट, वही कल वाली स्लीवलेस हल्की सी टूरिस्ट जैकेट, गर्दन में लटकता मफलर, पाँव में जोगर्स, वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आज उसके सर पे ही पी कैप थी। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर निशा की तरफ सो गई। निशा की तरह सो गई। कुछ 2 घंटे बाद उसकी आंख खुली। वो लोग अभी तक हालत सफर में थे। निशा जाग चुकी थी। उसने चोर नजरों से उफक को देखा। वो अपने सेल फोन के बटन से खेल रहा था। सुनो परी, तुम्हें ये शख्स अच्छा नहीं लगा? नहीं, और मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहती। वो खिड़की के बाहर देखने लगी। मगर मैं करना चाहती हूँ। निशा बजिद थी। ठीक है, फिर जाकर उसके पास बैठ जाओ। बकिया सारा रास्ता खामोशी से कटा। दिन चढ़ते बस पेशावर की हदूद में दाखिल हुई। सड़कों पर खासा रश था। अपने जोन पर चमकता सूरज शहर को झुलसा रहा था। कितनी गर्मी है यहाँ। हालांकि पेशावर पहाड़ों पर वाक़या है। यार, इससे ठंडा तो इस्लामाबाद था। निशा को अपना शहर याद आया। टूर कंपनी ने पहले से एक मुतवस्सत दर्जे के होटल में उनकी बुकिंग करवा दी थी। होटल के बाहर तंग सी सड़क पर बेतहाशा रश था। सड़क के अच्छे खासे हिस्से पर रेडियो का कब्जा था। गाड़ी एक ढलान पर चढ़कर होटल की पार्किंग एरिया तक आई। वहाँ गाड़ियों की लंबी कतार थी। नॉट बैड। बस से निकल कर निशा ने तबसरा किया। परी होटल की बुलंद इमारत देखने लगी। तुर्क सियान दोनों से फासले पर खड़ा, सफेद जीन्स की जेबों में हाथ डाले, आंखें सुखड़े इतराफ का जायजा ले रहा था। वो अपनी तरफ मतवज्जा पाकर मुस्कुराया। परीक्षा ने निगाहों का रुख बदल दिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? वो उनके करीब चला आया। ओह, तो आप हमें जानती हैं? निशा को उसका पूरा रास्ता उन्हें लिफ्ट न देना बहुत खटका था। शिकवा किए बगैर न रह सकी। वो जवाबन हंस पड़ा। मैंने सोचा सुबह सुबह नींद से बेहाल होते लोगों को ना जगाया जाए, जरा कहीं पहुंच जाएं तो आराम से गपशप करते रहेंगे। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला। परीशन दोनों को छोड़कर स्टेन एज लड़की के पीछे चलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। 246 कमरे नंबर में पहुंचकर जफर ने चाबी उसके हवाले की। वो ट्रिपल बेडरूम उसको निशा और उस लड़की के साथ शेयर करना था। ओके, शाम को मुलाकात होगी। उफक उन दोनों से ये कहकर 7 वाले कमरे में चला गया। मियाँ बीवी सामने वाले कमरे में चले गए। मैं डॉक्टर परीशा जहांजेब हूँ। कमरे में आकर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर उसने लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अरसा बुखारी हूँ। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है परीशे। वो रुकी और तहसीक करके बोली। परीशे आप ही? उन दोनों ने बेड्स पर बैठते हुए कदरे हैरत से उसे देखा। दरअसल मैं पाकिस्तानी कजन्स, और अगर बगैर आप ही बाजी कहे बुलाऊं तो दादो अंग्रेज कहकर टोकती हैं। सो मैंने ये नतीजा निकाला है कि किसी पाकिस्तानी लड़की को आप ही बाजी कहे बगैर नहीं बुलाना। वो दोनों हंस पड़ी। खाना उन्होंने साथ ही खाया। तब तक तारुफ का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। अरसा का ताल्लुक लाहौर से था, मगर वो पली बड़ी इंग्लैंड में थी। उर्दू के और पढ़ लेती थी। उर्दू की लिखाई पढ़ लेती थी, मगर बोलती बहुत बहुत मुश्किल से। उसके पास उसकी उम्र में भी एक अच्छा अल्पाइन रिकॉर्ड था। वो ज़्यादातर यूरोपीय एल्प्स सर कर चुकी थी। उसके अलावा वो तिब्बत में उसने शिशपंगमा और चोयो को सर किया था। बहुत मुश्किल नाम है। तो तुम उफक के साथ राकापोशी जा रही हो? निशा को मासूम और ज़हीन सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, उसने सर हिलाया। राकापोशी में नावल की सेटिंग है, और मैं बताना भूल गई, मैं राइटर भी हूँ। 2 नावल लिख चुकी हूँ। ये मेरा 3रा नावल है। इतनी सी उम्र में 2 नावल? परीक्षा को खुशगवार हैरत हुई थी। अरसा हंस पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था। मैंने तो इस उम्र में सिर्फ पहला नावल लिख दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया, मोहम्मद बिन कासिम की ना मेरे पास बुक है, तो मैं सोची थी वो भी मैं ऑनलाइन पढ़ के दूंगी, पर देखती हूँ जो पॉसिबल हुआ। खैर, अच्छा, तो तुम्हारे नावल की स्टोरी क्या है? उसे दिलचस्पी हुई। एक कोहे पे हीरोइन की राकापोशी सर करने की रोमानवी दास्तान। वो मजे से बोली। निशा सोने के लिए लेट चुकी थी। एंड हैप्पी करोगे या ट्रेजिक? एंड हैप्पी करोगे या ट्रेजिक? ट्रेजिक क्यों? क्योंकि ट्रेजिक एंड यादगार होता है। ट्रेजिक क्योंकि ट्रेजिक एंड यादगार होता है। वैसे आप नहीं आएंगी? राकापोशी, आप बता रही थी कि आप ही क्लाइंबर हैं। हाँ, मैं कंबर या केटू। स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट से 7 हफ्ते के कोर्सेज किए थे, मगर मैं राकापोशी नहीं आऊंगी। मुझे अपने फादर की परमिशन नहीं है। कंबरिया केटू सी? वो, वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। और स्विस अल्प्स के अलावा मैंने स्पांतिक को भी सर कर रखा है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। ओह, वैसे आप आए तो मज़ा आता। उफक भाई बहुत अच्छे हैं। मेरी उनसे मुलाकात फ्लाइट के दौरान हुई थी। वो मिस्र से आ रहे हैं और मैं इंग्लैंड से। अब सोते हैं। उससे पहले कि उफक नामा शुरू करती, परेशी ने उसकी बात काट दी। अरसा ताबेदारी से बिस्तर पर लेट गई। जल्दी ही उसे नींद ने आन घेरा। फिर वो शाम तक सोती रही। अरसा और निशा सुबह तड़के ही उठ गई थी
और बाआवाज़ बुलंद गप्पे हाँकते हुए उन्होंने उसे भी जगा डाला था, मगर वो आंखों पर हाथ रखे सोती बनी रही। दफातन दरवाजे पर दस्तक हुई। परीक्षा का दिल जोर से धड़का था। उसने आंखों पे से बाजू हटाया, मगर वो जानती थी कि बाहर कौन था। वो दस्तक नहीं, फकर सलान की खुशबू पहचानती थी। अंदर आ सकता हूँ अच्छी लड़की हूँ? उसका शरारत से खनकता लहजा परीक्षा की समाज से टकराया। उसकी आंखों पर बाजू ना होता वो शायद उसकी पलकों की इर्ताश देख लेता। लगता है अच्छी लड़कियों के बगैर दिल नहीं लग रहा, आओ बैठो। वो इतना महज़ब और शाइस्ता हंसमुख था कि निशा और अरसा फौरन उसके लिए उठ खड़ी हुई और उसे कुर्सी पेश की। यूं ही समझ लो। और परीक्षा के बेड सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी और बेड की पांति के दरमियान फासला खासा कम था। जगह तंग थी। वो बैठ तो गया, मगर उसके जोगर्स का सर बेड का सिरा को छू रहे थे। मैं इस सफ़र को यादगार बनाना चाहता हूँ और बतौर एक अच्छे से आके मैं कोई लम्हा फारिग नहीं बैठना चाहता हूँ। सो फिर तुम लोग बताओ, शाम क्या प्रोग्राम है? उसे महसूस हो रहा था कि बोलते हुए भी नज़र भटक कर उफ़क़ की निगाहें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसने अपने सफ़ेद बाजू के ओट में आंखों को छुपा रखा था, कंबल गर्दन तक ले रखा था। सिर्फ चेहरे का निचला हिस्सा खुला था। परी उठ जाए तो कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। तुम्हारी दोस्त बहुत ज़्यादा सोती है क्या? उसके अंदाज से परीक्षा को लगा वो जान गया है कि वो सो नहीं रही। नहीं, आज बस ज़रा थक गई है। तुम अपना प्रोग्राम बताओ। मैं आज तुम्हारे पेशावर के बाजार, यही कैंट और सदर वगैरह खंगालने का सोच रहा हूँ। बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन होना चाहिए था। कल देख लूंगा। एवरेस्ट, ठीक है। तो फिर हम तीनों भी आपके साथ चलते हैं उफ़क़ भाई। अहमद साहिब और इफ्तिखार फैमिली की मर्जी, वो जहाँ भी जाए, या फिर उनसे पूछ लें। अरसा मुतज़ब्ज़ब थी। वो कपल बहुत रिजर्व है। वो यकीनन हमसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। अहमद साहिब तो आधा घंटा पहले हुआ कहीं चले गए हैं और फिर हम चारों साथ चलते हैं। मगर वो एक लम्हे को रुका। परी के कान खड़े हो गए। मगर क्या? मगर हो सकता है तुम्हारे दोस्त को कोई इतराज़ हो। अरे नहीं, वो बहुत नाइस और स्वीट है, उसे कोई इतराज़ नहीं होगा। वैसे निशा, मुझे बहुत खुशी होती है जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दोस्त मेरी बहुत तारीफें कर रही थी। परेशी ने एक झटके से कंबल उठाया और तेजी से सीधी हुई। मैंने ऐसा कब कहा था? उफ़क़ का कहका बेख्तियार बुलंद हुआ। उसे अपनी हमाकत पर शर्मिंदगी हुई। निशा और अरसा कदरे हैरान थी। उन्हें अभी लतीफ़ा समझ ही नहीं आया था। तुम उठ गई, मैं समझे सो रही थी। मेरे सर पर जो तुम लोग गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, भला मैं कैसे सो सकती हूँ? शर्मिंदगी छुपाने को उसने गुस्से का सहारा लिया और बिस्तर से नीचे उतर गई। ड्रेसिंग रूम जाने के रास्ते में उफ़क़ की लंबी टांगें हायल थीं। उसे करीब आता देखकर उसने पैर समेट लिए। वो पैर पटकते हुए उस तंग जगह से गुजरी। सॉरी परी, मैं मजाक कर रहा था। वो बमुश्किल हंसी कंट्रोल करते माजत करने लगा, मगर वो झंझलाती हुई जोर जोर से अलमारी के पट खोल बंद करती रही। अच्छी लड़कियों, तैयार होकर लॉबी में आ जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। वो जाने का कहकर उठ खड़ा हुआ तो परी ने की नखियों से उसे देखा। उसने लिबास तब्दील कर लिया था। शर्ट की आस्तीनें आधी मगर रंग स्याह था और ऊपर सफ़ेद टूरिस्ट जैकेट, गर्दन के गिर्द बिल्कुल सुर्ख मफलर। राइट बॉस, अरसा ने दावेदारी दिखाई। वो मुस्कुराते हुए एक निगाह परीक्षा पर डाली और बाहर निकल गया। वो उफ कहते हुए क्लस कर रह गई। उन 15 मिनट में परीक्षा ने कोई 200 दफ़ा उन दोनों का ज़रूर प्रोग्राम बनाया था। तुमने उसके साथ सुना, क्या लिखा था? सुनिया था। निशा ढीठ बनी सुनती रही। अरसा को अलबत्ता हैरत हुई थी। ये परीक्षा आप ही की कोई लड़ाई हुई है उफ़क़ भाई से? वो तो इतने केयरिंग और स्वीट हैं। ये एक सदियों की दास्तान है, तुम्हें एक शाम में समझ नहीं आ सकती। निशा ने आह भर कर कहा। हेयर ब्रश करते परीक्षा के हाथ एक लम्हे घुट थमे थे। वो अंदर से कांप कर रह गई थी। पलट कर शाख की नज़र से निशा पर डाली और दूसरी अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी पर। निशा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। अरसा के सिर के ऊपर से सब कुछ गुजर गया। वो पैर पटाकर बाथरूम में चली गई। निशा की बात वो अमूमन माना नहीं करती थी, मगर अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता न था। निशा और अरसा चली गई तो उसने भला क्या कसूर किया था जो वो अकेले छोटे से कमरे में बैठी रहती? रही भी तो उफ़क़ के साथ मार्केट जाना है, उसे बुरा नहीं लग रहा था। अलबत्ता यूं जाहिर करना वो अपना फर्ज समझती थी। पार्किंग एरिया में खड़ी टूर कंपनी के बस के साथ टेक लगाए खड़ा उफ़क़ उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर सीधा हो गया। एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट ने उनके लब्बों को अहाता कर लिया था। पी कैप अभी भी उसके सर पर मौजूद थी। कैंट चलते हैं, यहाँ से बहुत करीब है। उनको रहनुमाई करते हुए वो होटल से पार्किंग एरिया से नीचे सड़क तक जाती ढलान से उतर रहा था। तुम तुर्की से आए हो या मिस्र से या सूबा सरहद से? निशा को उसका पेशावर और इर्द गिर्द की मालूमात देखकर हैरान करती थी। वह बेख्तियार हंस पड़ा। बस पिछली दफ़ा इधर आया था तो खासे दिन यहाँ गुजारे थे, इसलिए आइडिया हो गया। पिछली दफ़ा कब आए थे? 2 साल पहले। वो लोग ढलान उतर कर नीचे सड़क पर आ चुके थे। सड़क अच्छी खासी खुली थी, मगर फलों की रेहड़ियों और ख्वांचा फरोशों की बाहिमी ताउन से अब बहुत तंग हो चुकी थी। इस जगह होटल्स थे,
या पीसीओ। 2 साल पहले क्या सैरो सेहत के लिए आए थे। रेडियो से दोनों तरफ से गहरी सड़क पर रास्ता बनाकर चलना बहुत मुश्किल था, फिर वो बहुत ध्यान से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, सैरो सेहत के लिए। और बोलते बोलते वो एकदम खामोश हो गया। और बस कुछ कम था, वो साफ टाल गया था। और बस कुछ काम था, वो साफ टाल गया था। इखलाकियात से इतने तो गवाह आगाह थे कि अगर वो टाल रहा था तो वो उसके काम की तफसील ना पूछती। वो फक ने टैक्सी रोकी। टैक्सी वाला अंग्रेजी से नाबल था, सो कर ये कामला निशा ने ही तय किया। कैंट की खूबसूरत दुकानों के बाहर रास्ते से चलते हुए वो चारों खासी देर तक शॉपिंग करते रहे। अरसा उनको छोड़कर सईद बुक बैंक की तरफ चली गई। वो तीनों एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गई। ये इत्तेफाक था कि जब निशा मुख्तलिफ इयररिंग्स देख रही थी तो अपनी ढीली पोनी को कसते हुए परीशे के बालों का जकड़ा रबर बैंड टूट गया। उसके बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिर गए। निशी, तुम्हारे पास कोई कैचर है? अपने लंबे लेयर्स में कटे हुए बालों को संभालती वो परेशानी से निशा से बोली। अपना खरीदते थे तुम्हें मौत पड़ती है अपना खरीदते तुम्हें मौत पड़ती है। वो बहुत मसरूफ से सुखट से बोली। दफा हो जाओ। वो बड़बड़ाते हुए सामने शोकेस पर पड़ी बास्केट में रखे कैचर उस पोनिया देखने लगी। ये कैसा है? उसने चौंक कर सर उठाया तो फकर सलान हाथ में कैचर लिए उसे देख रहा था। उसने नजरें झुकाकर कैचर को देखा। वो सिल्वर कलर का था। उसके एक तरफ गोल बड़ा सा फिरोजी रंग का पत्थर, जबकि दूसरी तरफ सब्ज और नीला दो रंगा पत्थर जुड़ा था। अच्छा है। उसने खूबसूरत कैचर लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उफक ने उसके हाथ पर हाथ रखना चाहा। पकड़ते पकड़ते वो जमीन पर गिर पड़ा। वो घबरा कर चुकी और कैचर उठाया। उसके दो रंगे फूल के दरमियान जरब लगने से एक हल्की सी सीधी लकीर पड़ गई। टूट तो नहीं गया? वो पूछ रहा था। उसने नफे में गर्दन को जंबिश दी। वो फिर उसे नजरअंदाज करके सेल्समैन से कीमत पूछी। 250 रुपए। उफक ने पैसे दुकानदार की तरफ बढ़ा दिए। सॉरी, ये मैं खुद खरीदूंगी। उसने दबी आवाज में उसे टोका। मैं इस लालच में तुम्हें ये गिफ्ट कर रहा हूँ कि कल तुम भी मुझे कोई चीज गिफ्ट करोगी। मैं गिफ्ट्स नहीं देती, ना लेती हूँ। उसने बरस से पैसे निकाले, मगर मैं देता भी हूँ और लेना भी पसंद करता हूँ। वो बस जिद था। उसे नजरअंदाज करते हुए उसने पैसे सेल्समैन को थमाए। खाकी लिफाफे में पैक किया गया कैचे निकाल कर बालों में लगाया और निशा की तरफ आ गई। अरसा अरसा ने अरसा और निशा की शॉपिंग मुकम्मल हो जाने के बाद वो लोग बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा फैल रहा था। शॉप्स के अंदर और बाहर रोशनियां जगमगाने लगी थी। स्ट्रीट लाइट्स और साइरन बोर्ड्स रोशन थे। रात के खाने के लिए तुम लोगों को पेशावर के बेहतरीन रेस्टोरेंट ले चलूं? वो उनकी दाईं तरफ जेब में हाथ डाले सामने देखते हुए चल रहा था। वो उसके जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। पीसी, अरसा ने झट से पूछा। नहीं, मैं बदमजा, बासी और फीके खानों से लुत्फानंदोज नहीं होता। मैं तुम्हें एक बेहतरीन रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा। शहर के तंगो तरीक गलियों से टैक्सी में गुजरते हुए उन्हें वो एक तंग सी गली में ले आया जहाँ बेतहाशा तीसरे दर्जे के रेस्टोरेंट बने हुए थे। फिजा में हर तरफ मजे की खुशबू फैली हुई थी। वो उन्हें नमक मंडी वो उन्हें नमक मंडी ले आया था। परीक्षा को हैरत हुई। वो उसके मुल्क को इससे ज्यादा जानता था। नमक मंडी नमक मंडी नमक वाली कढ़ाई खाकर जब वो लोग वहां से निकले तो निशा ने इख्तियार पूछ लिया। तुम मगर इन जगहों पर इतनी दफा घूम चुके हो तो फिर अब दोबारा इधर क्यों आए हो? यही तो मैं कह रही हूँ यही तो मैं कह रही थी। अच्छे भले हम जुलाई में ही रकापोशी क्लाइंबिंग शुरू कर देते। ख्वामखा इधर आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं फक भाई को अचानक इन इलाकों का विजिट करने का ख्याल क्यों आ गया। और मुझे भी घसीट लाया। अरसा बेख्तियार बोल उठी। उफक ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने होटल के कमरे में वापस आकर निशा फिर रतबुल इंसान थी। मैंने इतना सॉफ्ट, नाइस और अच्छा इंसान जिंदगी में पहली दफा देखा है। और नहीं तो क्या, जितनी मालूमात इन इलाकों के मुतालिक उन्हें है, मेरा ख्याल है वो एक बहुत कामयाब सफरनामा निगार बन सकते हैं। रहने दो अरसा। वो जो टीवी ट्रॉली के करीब खड़ी हुई बोतल मुंह से लगाए पानी पी रही थी, कतरे चिरकर बोतल मुंह से हटाकर बोली। ये मगर भी दुनिया के लोग हमारे मुल्क में आकर मालूमात इसलिए इकट्ठी नहीं करते कि इल्मी दुनिया को हमारा सॉफ्ट इमेज दिखाएं, बल्कि अगर तुम इन लोगों के सफरनामे उठाकर पढ़ो तो तुम्हें इल्म होगा कि लोग हमारे बारे में क्या क्या जहर उगलते हैं। हमें जाहिल, पसवंदा और गैर तरक्की याफ्ता कहते हैं। तुम्हारे ये उफक अरसलान भी तुर्की जाकर यही काम करेंगे। सफरनामा लिखकर आलमी बरादरी को यह बताएंगे कि हमारा मुल्क कितना कदामत पसंद, गरीब और सहूलियात से नाबल्द है। कितनी गंदगी और बदनज़मी है यहाँ। ये सारे एक जैसे होते हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले। ठीक है, बोतल रख कर वो पलटी तो साकित रह गई। उफक लब भेंचे दरवाजे के बीच खड़ा था। वो यकीनन टैक्सी का किराया देकर इन्हें शब्बा खैर कहने आया था और चूंकि वो अरसा के लिए इंग्लिश में बात कर रही थी तो उसने सुन लिया था, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था।
वो एकदम तेज कदम उठाता राहदारी से वापस पलट गया। निशा और अरसा ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। उसे नाराजगी वो महसूस कर चुकी थी। एहसास तो उससे भी था, अंदर से वो बहुत परेशान और बीच में थी, मगर खामोशी से लेट गई। तुम्हारे पैसे? निशा ने उसके साइड टेबल पर 250 रुपये रखे तो उसने तकिया चेहरे से हटाया। कौन से पैसे? वो इस ज्वेलरी वाले ने वापस किए थे, कह रहा था तुमने उसे दिए हैं। तुम उस वक्त अरसा से बात कर रही थी, मैं देना भूल गई। उसके अंदाज में हल्की सी हुक्की थी। वो कुछ देर तो बोल ही नहीं सकी। कैचर जो उसने बहुत इश्तहाक से लगा रखा था, उसकी कीमत अदा उस शख्स ने की थी जिसको वो चंद मिनट पहले ही बेइज्जती कर चुकी थी। उसका दिल चाहा कि वो 250 रुपये उसी वक्त उसके मुंह पर मार आती, मगर उसने अहमद साहब के साथ कमरा शेयर किया था और फिर जो कुछ वो कर चुकी थी सो मजबूरी थी। वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। पैसे उसने पर्स में रख लिए। जितना वो उससे दूर भागने की कोशिश करती, वो उतना ही उसके रास्ते में आ जाया करता था। चौथी चोटी पी 25 जुलाई 2005। पूरी रात बेचैन और मुस्तरब रहने के बायस वो ठीक सो नहीं सकी। सुबह खासी देर से आंख खुली। दिन चढ़ चुका था। एसी की ठंडक के बावजूद सूरज की शुआएं जो खिड़कियों के पीछे से झांक रही थी, तपिश पैदा कर रही थी। उसने कसलमंदी से करवट बदला। निशा और अरसा कहीं जाने के लिए तैयार होती। मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम लोग? बगैर किसी सुबह बखैर के उसने लेटे लेटे ही दोनों को मुखातिब किया। सुबह से 110 आवाजें दे चुकी हूँ कि उठ जाओ, मगर तुम पता नहीं कौन सा इस्तराब में सो रही थी। अभी अरसा तुम पर पानी फेंकने लगी थी, वहां से भी जवाब तर से आया था। वो उठ खड़ी हुई। शोहला इफ्तिखार को शॉपिंग के लिए जाना था। उनके बहन की शादी ईद के बाद थी, तो वो उसको गिफ्ट करने के लिए कोई क्रॉकरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहती है। निशा को बताया तो उसने फौरन साथ चलने की हामी भर ली। जब वो सब बाहर निकले तो परीक्षा की मतलाशी निगाहें उफक की तलाशी में इधर उधर भटक रही थी कि उसे बेख्तियार अपनी रात वाली हरकत याद आई थी। शर्मिंदगी वरमिंदगी नहीं है मुझे, हल्के में, बल्कि अभी तो मुझे वो कैचर भी उसके मुंह में मारना है, पर मिले तो ना। वो शायद खुद को तसल्ली देती। सुनो अरसा, कौन कौन जा रहा है हयाताबाद? बहुत लापरवाही से टैक्सी की तरफ जाते हुए उसने अरसा को मुखातिब किया। हम सब? अब हम सब में वो शामिल था या नहीं वो पूछ नहीं सकती थी। अरसा और निशा के इरादे बताने वाले थे नहीं, सो वो खामोशी रही। गर्मी जोरों की थी, ऊपर से शैला और निशा की दुकानदारों से बहस सुनकर ही वो उकता गई थी। शोला को एक डिनर सेट पसंद आया, मगर वो 8,000 का था। कुछ रियायत करो भाई, मैं कोई पहली दफा आ रही हूँ तुम्हारी दुकान पर। अभी रास्ते में ही तो इफ्तिखार साहब ने बताया कि वो और शोला हयाताबाद दूसरी दफा आए हैं। बाजी, हमसे कसम ले लो, ये डिनर सेट आपको पूरी मार्केट में से कम में नहीं मिलेगा। खालिद जापान का माल है और बाकी लोग मार्केट में चाइना का माल रखता है। वो 18-19 साल गोरा चिट्टा लड़का था, चेहरे पर चौड़ी सी दाढ़ी थी। शैला ने डिनर सेट 6,000 में खरीदा। दूसरी दुकान पर वही डिनर सेट 3,000 में मिल रहा था, मगर परीक्षा को यकीन था कि वो डिनर सेट 400-500 से ज्यादा का नहीं होगा। आखिर चाइना और अफगानिस्तान से आने वाला स्मगल शुदा माल था। वो हयाताबाद के पठानों और सिख दुकानदारों से खासी बोर हुई थी। शाम को जब वो वापस आए तब तक उफ़ का कोई अता पता न था। वो इंतजार करती रही कि अरसा और निशा उसके बारे में मुंह से कुछ फूटेंगी, मगर वो तो शायद उसे भूल चुकी थी। बेहद थकावट के बावजूद परी फिर सो न सकी। अगर वो नाराज था तो वो उसे मनाने का कोई इरादा नहीं रखती थी, मगर वो एक दफा नजर तो आए। किधर चला गया था? शायद वापस। ये ख्याल ही बहुत तकलीफ देता था। अगर वो वापस चला गया था तो इधर क्या कर रही थी? उसको भी वापस चले जाना चाहिए। तो क्या वो सिर्फ उफक के लिए यहाँ तक आई थी? उस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया था। नहीं, मैं तो नुदत आपा से। उसकी दलील बहुत कमजोर थी। रात को निशा और अरसा उसे पेशावर के मशहूर जलील की चप्पल कबाब खिलाने ले गई। उफक का कोई पता न था। उस पर एक बेनाम सी उदासी तारी थी। वो जो एक दिन बाद ही बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, वो उसके ख्वाबों का शहजादा कैसे हो सकता है? जलील के ओपन एयर रेस्टोरेंट में सब्ज घास पर रखी कुर्सी पर बैठी वो यही सोच रही थी। लान की तर्ज के सब्ज घास से ढके वक्त अराजी की चारों तरफ सफेद बाढ़ लगी थी। रात का वक्त था, रोशनी के लिए बाहर 1-2 ट्यूबलाइट्स लगी थी और एक मदम सी रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हें कुछ और लेना है तो बता दो, निशा ने उसकी राय मांगी। उसने चौंक कर निशा को देखा और वर्दी वेटर को देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो तो ठीक से सुन भी नहीं पा रही थी कि अरसा और निशा ने क्या ऑर्डर किया था। सब्जी और शायद चप्पल कबाब। उसका दिमाग तो सैफ और उफक के दरमियान फंसा था। मैं माफ करना लड़कियों में हरगिज देर से आना नहीं चाहता था, मगर मुझे रास्ते में एक दिलचस्प आदमी जो किसी जमाने में रिपोर्टर था उससे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। बहुत माजरत। निहायत और जल्द में हमेशा की तरह बशाश लहजे में कहते हुए उस दराज कद और उस तवान आँख वाले तुर्क सियाने अरसा की साथ वाली कुर्सी संभाली। एक लम्हे को तो परीक्षा का दिल उछल कर हलक में आ गया। दूसरे ही लम्हे वो शांत हो गई। उसे यूं लगा जैसे उसका कोई गुमशुदा हिस्सा वापस मिल गया हो। वो आ गया था, वो उसे छोड़कर नहीं गया था। ये एहसास ही उसे सुकून देने के लिए काफी था।
वो इतनी पुरसुकून हो गई थी कि उसे खुद पर हैरत हुई। अच्छा, वो क्या कह रहा था? अरशद ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। वो उससे बैठे थे वो इससे बैठे थे कि परीक्षा की बाईं तरफ वो ऐसे बैठे थे कि परीक्षा की बाईं तरफ निशा और सामने फक्त और निशा के सामने अरसा बैठी थी। उफक मुस्कुराते हुए उससे वो बातें बताने लगा जो उससे रिपोर्टर से मालूम हुई थी। एक दफा भी उसने परीक्षा को नजर उठाकर नहीं देखा था। ओह निशा, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? कारखाना बाजार में दिमाग तो खाली हो गया होगा। अब तक उसने रुख सीधा करके निशा को मुखातिब किया। परीक्षा को वो मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा था। बहुत थका देने वाला एक आदमी 15,000 का कालीन बेच रहा था। मैंने जान छुड़ाने के लिए 1500 में दे दो और यकीन करोगे वो बोला कि हाँ ले लो। मेरे खुदाया। उफक लबों पर हल्की मुस्कुराहट के लिए बहुत ध्यान से सुन रहा था। खुद को भी नजरअंदाज होता देखकर वो अपने नाखूनों से खेलने लगी। उसके अंदाज में इज़्तिराब था। वो बात करता था, वो रुखाई बरतती थी। अब वो दूर हो रहा था तो वो बेचैन हो रही थी। अगरचे बज़ाहिर बेनियाज थी। वेटर हाथ में पकड़ी बड़ी सी ट्रे लिए उनकी मेज पर पहुंचा तो उसने चेहरा ऊंचा किया। नजर सीधी फक पर पड़ी। वो वेटर की तरफ मुतवज्जह था। ग्रे शर्ट की सीने कोनियों तक फोल्ड रखी थी। कैप में पूरे बाल छुप गए थे। मैंने तुम्हें जलील स्टूडेंट का इसलिए कहा था क्योंकि इनकी चिपली कबाब के साथ इनके नान ज्यादा पसंद हैं। सफेद, बेहद सफेद, आंसू की शक्ल के नान प्लेट में निकालते हुए मुसलसल बोल रहा था। उसकी बात से जाहिर होता था कि ये सारा प्रोग्राम उन तीनों का तयशुदा था और वही लाइलन थी। परिशी के कदमों के करीब एक सफेद बिल्ली चकराती फिर रही थी। उसे देखकर उसे अपनी बिल्ली याद आ गई थी। साथ साथ रोशन और सनी का रवैया याद आया था। उसने थोड़ा सा कबाब तोड़कर नीचे घास पर फेंका। बिल्ली ने झट से मुंह में डाल लिया और मुस्कुरा दी। अब वो एक नवाला खुद लेती और बिल्ली को देती। वो फक को जहन से छिटकने की कोशिश कर रही थी। मैं पिछली दफा इधर आई थी तो जलील भी आई थी, मगर वो ये वाला नहीं था। अरसा कह रही थी, यहाँ एक से ज्यादा जलील है। बहरहाल ये जलील ओरिजिनल है। वो वाकई इनके मुल्क को बहुत ज्यादा जानता था। वैसे उफक भाई, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतना खाते हैं। एक कोहे पेमा के लिए एक खासी अजीब बात है। देखो, मेरा जिंदगी का फलसफा ये है कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो खाकर मरते हैं एक वो जो खाकर मरते हैं और दूसरे वो जो बगैर खाए मरते हैं। वरना सब ने है, सो बेहतर है खाकर मर जाए। वो सर झुकाए बिल्ली को कबाब के छोटे छोटे टुकड़े खिला रही थी। वैसे आपने सारा दिन क्या किया? हमारे बगैर बोर तो हो गए होंगे। कतई नहीं, मैं म्यूजियम और देखे टूरिस्ट अट्रैक्शन देख आया हूँ और मैंने खूब मजा किया। जो आज़ादी तन्हाई में होती है वो यकीन जाना दो लड़कियों के साथ हरगिज नहीं मिल सकती। उसने 3 के बजाय 2 लड़कियां कहा था। उसके दिल को तकलीफ महसूस हुई थी। आपने चावल वगैरह ले ली? हाँ, और मछली भी। ओहो, अरसा, मैं बच्चा नहीं हूँ। पिछले 14 साल से कोहे पेमाई कर रहा हूँ। वो बेख्तियार हंसा। मैंने फूड सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त रखी है। इंशाल्लाह हम डाकाबोशी की चोटी पर भूख से नहीं मरेंगे। वेटर बिल ले आया था। फक ने बिल खुद अदा किया था। वो उनके हमरा होता तो रेस्टोरेंट का बिल, टैक्सी का बिल, टिप वगैरह वो देता था। निशा ने बहुत दफा टोकने की कोशिश की मगर इस मामले में वो खासी अना वाला था। अभी उसने 100 रुपये टिप रखी तो वेटर हैरान सा हो गया। ये क्या है सर? रख लो, नेवर माइंड। वो उठ खड़ा हुआ। बिल्ली जिसका पेट आधा चप्पल कबाब खाकर भी नहीं भरा था, परीक्षा के कदमों के साथ लौटने लगी। वो अलबत्ता अचंभे से वेटर की हैरानी को देख रही थी कि बाद में इल्म हुआ था कि पेशावर में टिप या बख्शिश का कोई रिवाज न था। वो पर्स उठाकर 2 कदम आगे बढ़ी तो बिल्ली बेख्तियार मियाओं की आवाज निकाली। उसने मुड़कर पीछे देखा। फक मेज से पीछे निकल रहा था। फक ने उसकी नागवा की ताकुब से बिल्ली को देखा। ओह ओह हाउ स्वीट। झुककर उसने बायां बाजू बढ़ाया और बिल्ली को उठाया। अब वो उसके सर पर हाथ प्यार कर रहा था। ट्यूबलाइट के दूर से आती मत्थम में रोशनी और चांद की चांदनी उसके चेहरे के नकूश को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। बिल्ली ने उसके प्यार का खासा बुरा मनाया था। वो एकदम छलांग लगाकर परीक्षा के कदमों में आ गई। उसने चौंक कर कदमों में लौटती बिल्ली को देखा, फिर गर्दन उठाकर उफक को। वो बिल्ली पर एक निगाह डालते साइड से निकल गया। उसे बेख्तियार रोना सा आया। वो ऐसा क्यों कर रहा था? इतनी बेरुखी क्यों कर रहा था? झुककर उसने बिल्ली की सफेद नरम खाल पर चमकाने वाले अंदाज में हाथ फेरा। इसी खाल को अभी वक्त ने छुआ था। उसके लम्स के तमाजात उसे महसूस हुई थी। उसने हाथ खींच लिया और तेजी से भागती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई, जहाँ वो सब खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उफक अलबत्ता एक छोटे से बच्चे की जानी मतवज्जा था जो भीख मांग रहा था। उसका लिबास अत्तर और पाँव नंगे थे। ये लो और इनसे शूज खरीदना। उफक ने 500 का नोट बच्चे की तरफ बढ़ाया। बच्चे ने फौरन झपट लिया और तेजी से वहां से भाग गया कि कहीं वो वापस न मांग ले। उफक बेचैनी फिक्रमंदी से उसे भागते देखता रहा और फिर उसने बेख्तियार सर झटका। काश मैं इन पहाड़ों में बसने वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। वो खामोशी से लब काटी सर झुकाए टैक्सी में बैठ गई। मंगल 26 जुलाई 2005।
होटल की लॉबी में इस्तकबालिया दस्तक के सामने वाले डेस्क ये क्या है? डेस्क, अच्छा ठीक है। डेस्क के सामने वाली दीवार के साथ चंद सोफे रखे थे। वो एक सोफे पर टांग रखे बैठी अखबार देख रही थी। सुर्खियों पर निगाहें दौड़ाते हुए वो बाकी लोगों के नीचे उतरने का इंतजार कर रही थी। जफर पहले ही बाहर बस के साथ खड़ा था। उसके अलावा अभी तक सब ऊपर थे। इंटरनेशनल कॉल रिलीज है। अंग्रेजी लबोलहजा उसकी समाज से टकराया। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने सर उठाकर देखा। वो उसके जाने कमरे के इस्तकबालिया डेस्क पर कोहनी रखे खतरे झुककर इस्तकबालिया क्लार्क से कह रहा था। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में सिर्फ मफलर दिखाई दे रहा था। पूरे बालों पर पी कैप भी थी। उसने शायद अभी तक परीक्षे को नहीं देखा था। उसे बेख्तियार उसका रात वाला मगरूर और बेरुखी भरे अंदाज याद आया था। उसने नजरें झुका ली। फक ने डेस्क क्लर्क को एक लंबा चौड़ा नंबर बताया। क्लर्क ने सिलसिले मिलने पर रिसीवर फक को थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम माने। आपने मखसूस तुर्क आने अम्मी को कहते हैं। अच्छा, सलाम वालेकुम माने। अपने मखसूस तुर्क लबो लहजे में वो अपनी ज़बान में बहुत पुरजोश अंदाज में बात कर रहा था। आखिर में उसने गुले गुले आने कहकर रिसीवर बंद कर दिया। एक कॉल और करनी थी। उसने दोबारा एक और लंबा चौड़ा नंबर मिलाया। मरहबा, अज़्ज़ज़ तुमास, आई एम अरसलान, कैन आई स्पीक टू मिस्टर चेनिक यकीन प्लीज। अच्छा, वो किसी जीनक यकीन, अच्छा नाम है, से बात करना चाह रहा था। मतलूबा शख्स शायद लाइन पर आ गया था। वो एकदम बहुत बहुत बेतकल्लुफ़ अंदाज में बात करने लगा। अंग्रेजी के चंद जुमलों की बाइस वो इतना समझ चुकी थी कि मुखातिब से उसकी खासी बेतकल्लुफ़ी थी और वो उसको अपने पेशावर से सवार जाने के बारे में आगाह कर रहा था। दूसरी जानिब से किसी ने कुछ कहा तो वो बेख्तियार हंस पड़ा और बोला, मैं बचपन में किस्से कहानियों में जो बात पढ़ी थी वो आज सच हुई है। यकीन करो, कराकम के पहाड़ों पर वाकई परियां उतरती हैं। परीक्षी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसके हाथों में नमी दर आई थी। उसने घबरा कर चेहरा बिल्कुल झुकाकर अखबार के अंदर कर लिया। वो यकीनन उसकी मौजूदगी से बेखबर अपनी मादरी जुबान में अलविदाई कलमात अदा कर रहा था। गुले गुले कहकर उसने रिसीवर रखा। फिर पैसे अदा किए। बकिया रकम बटुए में डाली और बटुआ जेब में रखते हुए पलटा ये था कि उसे वहां बैठा देखकर टटका। परेश ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था कि वो उसकी चेहरे की एड़ी उड़ी रंगत नहीं देख सकता था। बस एक लम्हे को वहां रुका और फिर निकल गया। उसने अखबार मेज पर रख दिया और अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये इसके साथ क्या हो रहा था? वो जैसे उसकी बेरुखी और बेतनाई समझ रही थी। वो सिवाय एक मसनूई खोल के कुछ न था। वो खुद को मुसलसल 3 दिन से उसके मुतालिक क्यों सोचे जा रही थी। वो एक मंगनी शुदा लड़की थी। हालांकि मंगनी कोई शरई ताल्लुक न था, फिर भी उसे लगता था कि उसे सैफ के अलावा किसी के मुतालिक नहीं सोचना चाहिए। वो इसीलिए उसे खुद से दूर रख रही थी। वो दरअसल खुद से लड़ रही थी पिछले 3 दिन से। उसे सुकून चाहिए था। वो इसलिए उसे खुद से दूर रख रही थी। वो दरअसल खुद से लड़ रही थी। पिछले 3 दिन से जारी से हिसाबी जंग में वो थकने लगी थी। वो कब बस में बैठी, बस कब चली, उसे कुछ होश न था। उसने सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। जिंदगी की सच्चाइयाँ और हकीकतें कितनी तलख होती हैं। वो कफ़स में कैद और अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकती थी। नवंबर में उसकी शादी सैफ जैसे नापसंद शख्स से हो जाएगी। वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगी इस सही इंसान के साथ? वो उसके लिए नहीं बना था। वो उसके लिए बनाया ही नहीं गया था। इस लम्हे जब टूर कंपनी की बस साफ सुथरी कुशादार सड़क पर दौड़ती हुई पेशावर की हदूद से बाहर निकल रही थी तो परीक्षा के जहन में बस एक ही फिक्र की बाज़ गूंज रही थी कि राक्रम की पहाड़ियों पर परियां उतरती हैं। वो बंद आंखों से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट बहुत सुगवार थी। किराक्रम की पहाड़ों पर परियां परियां उड़ती हैं। फकर सलान, मगर वो सफल मलूक तक महदूद हो जाती हैं। परदेसी परदेसी कोई प्रेमा के लिए परियां नहीं होती। उसने आंखें खोल कर दाई जानिब देखा। उसके साथ निशा बैठी थी। निशा के दाई जानिब बराबर वाली कतार में फक्त अच्छा होकर बैठा निशा से बात करता। वो खासा खुशगवार मूड में था। परीक्षा को जागते देखकर उसने एक दोस्ताना मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। हमारी गुफ्तगू से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? कल रात वाली अकड़, बेनियाजी, बेतनाई सब गायब था। वो वाकई इसको नहीं समझ पाई थी। नहीं, मुख्तसरन कहकर उसने रुख खिड़की की तरफ ले लिया। शायद वो भी खुद से लड़ते लड़ते आजिज़ आ चुका था, या फिर शायद कल रात वाला रवैया महज उसके परसों रात वाली तकरीर के जवाब में नाराज़गी का इजहार था, या फिर शायद वो सब कुछ भी नहीं था। उसके मुतालिक कोई एहसास ही नहीं रखता था। उसका ज़हन मंफी अंदाज में सोचने लगा। मैं गलत सोच रही हूँ। वो निशा और अरसा से बात करता है, मुझसे नहीं करता। फिर मैंने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि वो मेरे मुतालिक कोई ख़ासा जज्बा रखता होगा। वो तो नगर नगर फिरने वाला एक मुसाफिर है जो दुनिया की सबसे हसीन पहाड़ी को सर करने का अज़म लिए मेरे देश आया है और चंद दिन उन खूबसूरत वादियों, चश्मों और पहाड़ों के दरमियान बताकर उसे यहाँ से चले जाना है बिताकर उसे यहाँ से चले जाना है। वो जाने के लिए ही आया था। फिर उसे इतनी जज्बाती क्यों हो रही थी? मुझे उसके साथ नॉर्मल रवैया अख्तियार करना चाहिए।
اس کا ہمسفر تھا، وہ کیوں خواہ کے خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ افق کو تو واپس ترکی جا کر یہ بھی یاد نہیں رہنا کہ مارکلا کی پہاڑیوں پر جب بادل اترے ہوئے تھے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ سڑک پر اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ سیاح تو بہت کٹور ہوتے ہیں۔ خوبصورت مناظر بہت غلط لکھا ہوا ہے، پلکوں میں جذب کر کے اپنے دیس لوٹ جاتے ہیں، پھر پلٹ کر نہیں آتے۔ تو وہ کیوں اپنے اندر کوئی جذبات پالنے لگی تھی؟ اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تھا، کوئی پریشانی جیسے ختم ہوئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ پنپ بھی رہا تھا تو اس نے قطرے جتنے جذبے کو سختی سے سیپ میں بند کر کے اپنے دل کے وسیع سمندر میں تفرق لیا۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں روز کی آدھے گھنٹے کی تقریباً کوشش کروں گی کہ ہو جائے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔